So now, Thank you for today's having our thank you. So today's our presenter is Narendra Kalsi. Welcome, Narendra Aunty. Narendra Aunty is a MWC ambassador. She is a former retired teacher, principal in India. And she's a really active member of many social and cultural groups. Narendra Aunty is a all-rounder. She's a writer, painter, and she loves knitting, gardening, and photography. So today Narendra Aunty will share with us the modern and the modern and the past culture with us. Thank you so much, Narendra Aunty. So floor is yours. Nas, thank you so much. In short, Narendra Aunty is all in one. है ना Narendra Aunty? चाहे painting हो, चाहे knitting हो, चाहे writing हो, Narendra Aunty is always there. Thank you, Narendra Aunty. Thank you, Sat Sri Akal, Namaste, Adas, and good evening to everybody. You just say many more things about me. I don't deserve that. Okay, thank you very much. First of all, I want to thank Uzma ji as well as Anu that they have given me a chance to speak in front of you. My topic is living of human beings, this modern living and ancient living. This topic is very interesting and it will take a bit time, and I am sure you will enjoy this. And I will try my best to make it humorous. So everybody knows that this nature change is the law of the nature. You will find change everywhere. And this necessity is the mother of invention. Whenever we want something, we do something and invention is done. So this topic is very vast, but I will not go into details. I will take one part of it and I will let you know about the difference between a new, modern and ancient living. First of all, this change was not made within one day. This work was made by people slowly and slowly. This change is not made by, you can say, special man. It is made by two things, by this nature of our and human beings. Nature is that natural climate is just like earthquake, some storms, some ice storms, some this rains, and many type of this calamities can be there. That makes our earth, our universe to change its shape, its working, and many other things. Second is human being. Human being, अब हम चाहते हैं कि हमें घर चाहिए, जनता बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, घर भी चाहिए, चलो जी ये फॉरेस्ट को काट दो, जमीन बन गई, घर बना लो. हमने क्या किया, जो हमारी नेचर थी उसमें चेंज कर दिया. अब उसके अकॉर्डिंगली अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमें हर एक चीज में चेंज आ रहा है, हर एक चीज में चेंज आ रहा है. आप कहीं भी ले लो, तो जो आज से 2-3 सेंचुरीज पहले था वो अब नहीं है. हर एक चीज में आपको चेंज मिलेगा. अब क्या आप कहेंगे कि कौन कौन से ऐसी चीजें हो सकती है जिसमें चेंज आया. हम वो ना मतलब कोई भी स्फीयर, कोई भी फील्ड ले लो आप यूनिवर्स का, हर एक में ही चेंज आया है. अब सबसे पहले हम लेते हैं एग्रीकल्चर. जो आज से 2 या 3 सदी पहले, शताब्दी पहले लोग थे, हमारे जो ग्रैंड थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो हमें बताते थे कि कैसे होता है, कैसे नहीं. और ज्यादा चेंज हमारे हुए हैं फ्रॉम द मिडल ऑफ दिस 20th सेंचुरी. इससे पहले भी वैसा ही चलता था जैसा कि 18th और 19th सेंचुरी में था.
तो सबसे पहले हम लेते हैं जी एग्रीकल्चर में चलते हैं। उस समय का टाइम का ऐसा जो फार्मर था, जहाँ सवेरे उठता था, देवर अर्ली राइजर, तो उठ के उसने अपने बैल खोलने, हल लगाना, बैलों को लेके खेत में चल जाना बिना कुछ खाए पिए, और जाके हल चलाता जाना, जलाता जाना। वाइफ उसके बाद में उसके लिए खाना लेके जाती थी बना के। तो वहां जाके उसने चाहे सारा दिन लगना, कई दिन लगा के, थोड़ी सी जमीन होती थी जिसमें हल चला के उसे जोतता था और उसे उपजाऊ बना के, मतलब फसल बीजने के लिए तैयार करता था। जब उसकी जमीन तैयार हो गई, फिर उसने हाथों के साथ उसमें बीज बोने, बीज बो दिए तो छोड़ दिए भगवान के सहारे। अगर बारिश पड़ गई, वेल एंड गुड, अच्छी फसल हो जाएगी, नहीं पड़ी तो भगवान का नाम लो। तो अब आप देखिए, आज का जमाना देखिए, एक इंसान है, घर से उठता है, ट्रैक्टर चलाया, गया फटाफट, घंटों में ही कितने खेत तैयार करके आ गया। अब दूसरे दिन फटाफट उसमें उसने बीज बो दिए। वो फसल, उसको कोई पानी का फिक्र नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने इतनी ज्यादा कैनाल्स बना दी हुई है, जगह जगह हर एक के खेतों में ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं इरिगेशन के लिए। तो पहले जमाने में क्या होता था, तो कोई ट्यूबवेल नहीं, कुछ नहीं होता था, बारिश पर मोस्टली डिपेंडेंट रहते थे। उसके बाद थोड़े थोड़े करके उन्होंने कुएं बनाए अपने खेतों में, जिसको कुआं नहीं, रहट बोलते थे, जहाँ टिंडों वाला कुआं, जिसमें डिब्बे से होते थे लोहे के, वो नीचे जाते थे, कुएं में से पानी भर भर ला के फेंकते जाते थे और पानी खेतों में लगता था। अब मजे की बात है कि आप में से बहुतों ने ये रहट जहाँ कुएं टिंडों वाले नहीं देखे होंगे। तो मैं इस बार नहीं बना सकी स्लाइड में, अगर कभी भी प्रोग्राम दूंगी उसमें स्लाइड में आपको दिखाऊंगी। उसमें लोहे के टिन के डब्बे बनाए होते हैं, उसको चेन के ऊपर लगा देते हैं, बड़ी सारी चेन के ऊपर, और मशीन के एक्सल के साथ वो नीचे जाते, घूमते रहते हैं उस चेन के ऊपर, पानी नीचे से भर के ऊपर ला खाली होते जाते हैं। तो ये, अब ये नहीं कि यहाँ पहाड़ों में, तो यहाँ इस कंट्री में तो मुश्किल ही है, इंडिया में भी नहीं अब मिलते ये। और एक मैं एक बात बताऊँ कि वहां पर एक बैंक्वेट हॉल खोला और उन्होंने उसका नाम रखा टिंडा वाला खूह। हम बड़े हैरान हुए भी, इसका नाम ऐसा क्यों, लेटेस्ट इतना बड़ा सिटी है जलंधर में, तो इसका नाम क्यों रखा। बाई चांस हमारे किसी रिलेटिव की हम मैरिज है, हम देखने, हम भी गए मैरिज में, तो हमने कहा हमने ये देखना इसका नाम क्यों रखा है ये। तो उसका मालिक हमें ले गया, उन्होंने आर्टिफिशियल ना थोड़ी सी जगह में वैसा ही उसका जो स्केलेटन था, कहीं से ले आए होंगे कहीं से, तो वो बना के ना कुआं सा उसमें लगाया हुआ, ताकि कहता कि न्यू जनरेशन को पता चले कि ये टिंडों वाले कुएं क्या होते थे, कैसे पानी आता था, किस तरह के, ये दिखाने के लिए हमने यहाँ पर लगा के ना इसका नाम इसलिए ये रखा है। और जब आपको किसी म्यूजियम में भी मिल जाएंगे ऐसे, तो वो कुएं अब मिलते नहीं है, तो उनसे वो जो अपना इरिगेशन का काम करते होते थे। और उसके बाद उन्होंने घर में, घर के आसपास उनकी लेडीज ने सब्जियां बीज लेनी, जो ना उसमें कोई पेस्टिसाइड, ना कोई फर्टिलाइजर, अपने गोबर की खाद डालनी, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जियां, तरह तरह के सब्जियों के, फलों के उन्होंने पेड़ लगाए होते थे, क्यारियां बनाई होती थी, तोड़ना और फटाफट खा लेना फ्रेश। एक तो बिल्कुल फ्रेश और एक बिल्कुल प्योर। आज मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलता। वो सब्जी बना, कहते हैं कि हमारा बड़ा साइज हो, हमारे अच्छे, उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं बिना सोचे कि ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है कि यूजफुल है, ये नहीं सोचते। उनको अपनी सब्जी, अपने फ्रूट बेचने हैं सर उन्होंने। तो उसको वो बड़ा करने के लिए उसमें इंजेक्शन लगाते हैं, कोई कीड़ा लगा, पेस्टिसाइड लगाते हैं, फिर डालते हैं, फिर उसमें फर्टिलाइजर तरह तरह के डाल के, और ये मतलब एक मौसम में जब हुए उनको खूब सारा कलेक्ट किया, कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया, सारा साल रखा। अब वो ना फ्रेश होते हैं, ना हमारे लिए यूजफुल होते हैं, ना उनमें जो भी हमें चाहिए कोई चीज अच्छी तरह से नहीं मिल पाती, बल्कि कि हमारे
वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक ही होते हैं। और जो गांव के लोग हैं, जाओ हर एक सीजन में नए से नए सब्जी, नए से नया फ्रूट खाओ। उन टाइम में ऐसा होता था, जंगलों में भी फ्रूट उगे हुए थे। आप अगर कहते थे ना बनवास हो गया, जिसको बनवास दे दिया, बनवास में भूखे नहीं मरते थे, ना ही वो चूल्हा बना के रोटी बनाते थे। इतने फ्रूट्स के ट्री है, अगर आप सच्ची मुच्ची के अब भी जंगलों में जाओ ना, तो आपको बहुत फ्रूट ट्रीज मिलेंगे, जिससे आप जो मर्जी फ्रूट खाते जाओ। तो आप में से शायद नहीं कभी गया हो, मैंने देखा बहुत फ्रूट्स होते हैं। ये इमली, कटहल, जैक फ्रूट जो होता है, कितना बड़ा बड़ा ये सब मिल जाता है। तो अब और उसमें अब खाने में देखिए आपने कितना फर्क आ गया है कि ये। नरेंद्र जी, एक क्वेश्चन है, आप हाँ कौन जी, से जंगलों की बात कर रही हैं? हाँ जी, कहाँ के जंगल? मैं जंगल बिहार में भी गई हूँ, कलकत्ता के पास। तो वहाँ जानवर नहीं थे? जानवर भी होते हैं, पर हर वक्त नहीं। हम होते थे, ग्रुप उड़ा लेना बच्चों ने, तब बड़े तो थी नहीं, तो हमने घूमना, इमली के पेड़ देखने, हमने शोर मचाना, इमली लगी हुई है, ये सीताफल लगा हुआ, कस्टर्ड एप्पल जिसको बोलते हैं, और मैंगोज, तरह तरह के मैंगोज हैं, खाई जाओ। इतने फ्रूट और बेर जो बाजार में अब मिलने बंद हो गए हैं, इतने ज्यादा फ्रूट्स होते थे ना कि लोगों को जरूरत ही नहीं होती थी कि कहीं अपना बीज के उसको फर्टिलाइजर डालें और पेस्टिसाइड डालें और वो खाने लायक बने। और उसके बाद हम लेते हैं सेकंड टॉपिक लेते हैं इसका, एग्रीकल्चर हो गया, हमारा फूड हो गया। घी होता है उनकी अपनी, उन्होंने खूब पशु रखे होते थे, प्योर घी निकालना, प्योर दही, प्योर दूध पीना। और आजकल बाजारों में आपको शायद मालूम होगा कि जो दूध बिक रहा है पैकेट्स में, इंडिया की बात करती हूँ, यहाँ अभी पता नहीं हुआ होगा, वो व्हाइट पेंट होता है, उसका दूध बना के बेचते हैं, जो कि इंसान के लिए कितना कितना हार्मफुल है। चावल, प्लास्टिक के चावल बना के बेचते हैं, कोई चीज ऐसी नहीं मिलती जिसमें प्लास्टिक के चावल बनाते हैं। आई थिंक उस्मा कुछ पूछना चाह रही हैं। हाँ जी, पूछो, कौन पूछो। सो नरेंद्र आंटी, ये बताएं, हम आपसे क्वेश्चन आंसर एंड में करें कि हर टॉपिक साथ पूछते जाओ, साथ करें? तो अभी जिस तरह आपने इरिगेशन की बात की, आपने ट्रैक्टर्स की बात की, वहां वो जो कुआं है उसकी बात की, ठीक है, तो आप हमें आप सोचना, आप चाह रही हैं कि हम सोचें कि कंपैरिजन करें कि कौन सा जमाना अच्छा था, कौन सा ये था? मैं एंड में सब बताऊंगी। नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ कि हम क्वेश्चन कहाँ करें, कब करें, तो हम एंड तक रखें? नहीं, ये अच्छा बुरा मैं एंड में सब कुछ बताऊंगी आपको, पर अब और कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आप जैसे कि भाई ये दूध है, एडल्ट्रेशन इसमें बहुत होती है, बहुत तरह के, जो कि हमारे लिए नुकसान वाला है। चावल आपने खाए नहीं होंगे शायद, वो प्लास्टिक के बिल्कुल गल भी जाते हैं। आंटी, चूंकि हम कनाडा में रह रहे हैं ना, तो हमारे लिए थोड़ा सा यहाँ इस वक्त मुश्किल है ये सोचना, क्योंकि इतने सालों से लोग यहाँ आए हुए हैं, तो वो थोड़ा सा कंपैरिजन करना। मैं ये सोच रही थी, जैसे आप कह रही थी कि प्योर दूध, तो अब हमारे पास यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक जो है वो उसी की एक फॉर्म है, मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि उसी की फॉर्म है जिसपे पेस्टिसाइड स्प्रे भी नहीं हुआ होता, उनमें कोई चेंजेस भी नहीं लाई होती, जो यहाँ बात। तो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ इस तरह। चलो आगे। जी जरूर। आप देखिए, उसके बाद हमारे जो पहले लोग होते थे, उन्होंने देसी घी खाना, उसके बाद उन्होंने सरसों का तेल यूज करना शुरू किया, फिर हमारे यहाँ वनस्पति ये घी बन गए, डालडा वगैरह, कई वैरायटीज थी उसकी। पहले तो बड़े लोग खुश हुए, बाद में सबने कहना शुरू कर दिया ये हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं। लोग ज्यादातर कहते थे कि बाल सफेद हो रहे हैं इनसे, आई साइट कम हो रही है। उसको भी धीरे धीरे बंद करके ये रिफाइंड ऑयल चल पड़े। हम बड़े खुश हुए कि रिफाइंड ऑयल अच्छा है। अब उसको भी कहते हैं जब वो गर्म करो तो हार्मफुल हो जाता है, क्या अनसैचुरेटेड है, उसके हो जाता है क्या, वो भी नहीं अच्छा। अब हार के फिर लोग घूम फिर के वहीं आ गए, देसी घी अब यूज करने लग गए, और तेल भी लोग बहुत यूज करते हैं। तो मतलब चेंज इज देयर, ऑलवेज चेंज इज देयर। और मतलब पहले था कुछ था, उससे चेंज आ रहा है। उन लोगों की जरूरतें भी इतनी नहीं थी जितनी कि अब है।
वो लिमिटेड उसमें रहते थे, तो लिमिटेड ही उनकी जरूरतें होती थी। ये बटर है, उसमें भी बहुत ये अडल्ट्रेशन करते हैं। यहाँ तो नहीं है, इंडिया में बेचने आती होती थी लेडीज, घर में आ जाना, बर्तनों में डाला हुआ पतीले वगैरह में बेचना, और हमने वैसे ही खरीद लेना जितना था। बाद में देखा आसपास घी है, बटर है, बीच में बॉईल करके आलू डालेंगे। वो चीजें यहाँ तो नहीं है। अभी यहाँ पर काफी मतलब ऑनेस्टी है फिर बहुत, तो धीरे धीरे बढ़ ना जाए। हम ये विश करेंगे कि हमें ओरिजिनल पर ही रहना चाहिए, अच्छे साइड के तरफ जाना चाहिए, ना कि ये गलत साइड पर चल पाए। देखिए वहाँ पहले जमाने में बीमारियां कम होती थी। अब जो जो न्यू न्यू हम चीजें खा रहे हैं, नए चेंजेस आ रहे हैं, हमारी हेल्थ पर भी उनका इफेक्ट बहुत पड़ रहा है। बीमारियां भी बेहद हो गई हैं, इतनी बीमारियां कि नहीं से नहीं। रोज ये कल अभी कोविड किसी को भूला नहीं होगा। जब हम छोटे होते थे तो कहते थे सबसे ज्यादा डेंजरस बीमारी है टीबी। हमें स्पेशली बताया जाता है कि जहाँ टीबी हो मत जाना, हवा में से भी हुई टीबी हो जाता है, ये जिसको हो गया बचेगा नहीं, हमेशा मर जाएगा। अब टीबी का कहीं नाम निशान भी नहीं है। अब तो नई से नई बीमारियां आ रही हैं, और उनके ट्रीटमेंट के लिए भी नई नई वैसे ही रिसर्चर हो रही हैं। जैसे कोविड को खत्म करने के लिए सारे कंट्रीज ने ट्राई की, और कितने उन्होंने वैक्सीन बना लिए जो कि अब हमारे लिए यूजफुल हो रहे हैं। अब कैंसर जगह बार बार कितनी तरह का कैंसर हो गया है, तो उसके लिए भी कितने तरह के वैक्सीन मेडिसिन बन गई हैं। पहले पुराने जमाने में कोई बीमार होता था, कहना काढ़ा बनाओ और जिसको काढ़ा दे दो, वो काढ़े से सारी बीमारियां ठीक हो जाती थी। किसी के चोट लग गई, चलो ये थोड़ी जड़ियां बूटियों के पौध, ये लीव्स लाके उनको पीसो, उनका जूस निकाल के लगा दो और ठीक हो जाएगा। किसी के स्वेलिंग हो गई, कहना ये पत्ता लो पर्टिकुलर पेड़ का, तेल गाओ सरसों का गर्म करके ऊपर बांध दो, उसकी स्वेलिंग सच्ची बंद खत्म हो जाती थी। तो आज अगर उन चीजों को हम यूज करिए, हम तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे, हम एलोपैथी की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसके साइड इफेक्ट है। ये शुगर जो ये डायबिटीज है, कितना हो गया, कभी नाम ही नहीं सुना था। तो अब धीरे धीरे लोग क्या है कि नेचुरलपैथी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, और एलोपैथिक के बजाय आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक लोग उनकी तरफ भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। दो their treatment is slow, but that is useful. Instead of जैसे ये एलोपैथी खाएंगे हम ठीक तो एकदम हो जाते हैं, पर उसका इफेक्ट बहुत मतलब साइड इफेक्ट जरूर होता है। अब पेन किलर आप खा लो, एक पेन तो आपकी ठीक हो गई, पर इफ यू टेक इन एक्सेस तो आपके किडनीज पर इफेक्ट पड़ता है। तो किडनी वीक हो गए तो किडनी के साथ तो और भी कई बीमारियां लगती हैं। इसलिए ये कितना चेंज है, कहा इतने वैक्सीन, इतने इंजेक्शन, इतनी चीजें बन गई हैं, और वो कहाँ थोड़ी सी चीज में, काढ़े में ही सब ठीक हो जाता था। अब लीजिए एंटरटेनमेंट, उस जमाने में भी एंटरटेनमेंट होता था। जो अमीर राजा लोग होते थे उनके दरबार में कवि होते थे, कवि दरबार लगाते थे, वो मुशायरा करते थे, और उसके बाद उन्होंने डांस देखने के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए लेडीज रखी हुई थी, डांसर्स रखी हुई होती थी, और हंसाने के लिए उन्होंने ये भट्ट कई तरह के रखे होते थे जो उनको हंसाने वाले जोक्स सुनाते थे। तो हर एक तरह से उन्होंने मतलब एंटरटेनमेंट का। आज आप एंटरटेनमेंट की तरफ जाइए, हम छोटे से थे तो किसी किसी के घर में रेडियो होता है, बाई चांस हमारे घर में था, तो उस टाइम रेडियो छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े रेडियो होते थे, और 2-3 कंपनी सुनाते थे, मर्फी, फिलिप्स एंड जीसी। जिसके घर में रेडियो है, बाकी सारे लोगों ने उसके घर में इकट्ठे हो जाना, और कईयों ने कहना इस डब्बे में कैसे घुसा वो आदमी, कौन गा रहा है अंदर, कौन बोल रहा है, हमें दिखाओ, खोलो। और हम भी बच्चे ये सोचते थे इसमें है, पर क्योंकि उसका डिब्बा भी काफी बड़ा होता था। फिर हमने सुना कि अब टेलीविजन आ रहे हैं जिसमें आदमी
चलता बोलता खड़ा आप सब एक्शन करता हुआ दिखाई देगा। वो भी आ गए 70s में, मतलब आम हो गए थे। वह पहले तो बहुत ही रेयर थे। ब्लैक एंड व्हाइट आए, फिर आ गए कलर्ड आ गए, और इतनी ईद करी जा रही है। ब्लैक एंड व्हाइट जब आए तब भी किसी किसी के घर में होते थे। तो सबसे पहला उस एक ही दूरदर्शन दिल्ली स्टेशन चलता था, और उसमें जो सीरियल चलना सारे इंडिया में वही सब देखते थे। सबसे पहला सीरियल उन्होंने चलाया हम लोग, फिर बुनियाद, कसौटी जिंदगी की। तो जहां भी आप इंडिया में जाओ उसके बारे में डिस्कस कर सकते थे। अब तो इतनी चैनल्स हैं कि एक एक ने घर घर में चैनल बनी हुई है, और पता ही लगता है कौन सा प्रोग्राम देखे। हमारे पास टाइम ही नहीं होता सोचने का कौन सा देखे, जो आया सामने देख लिया। एंटरटेनमेंट के लिए इतने अच्छे सीरियल्स आते हैं, सब कुछ आते हैं, जो कि पहले लोग खुद उस ड्रामे को करते होते थे, आर्टिस्ट होते थे। अब वही आर्टिस्ट एक्टर बन गए और फिल्में बनाई जा रही हैं, तरह तरह के त्योहार आ रहे हैं, नए नए तरह के गाने आ रहे हैं। और पुराने लोग थे जो थे वो समय के अनुसार, कई इनके अनुसार अपने गाने बना लेते हैं। बच्चा पैदा हुआ, ये गाने गाने, बच्चे की लोहड़ी डालनी, ये गाने, दिवाली आ रही, ये गाने, शादी होगी, इस ओकेजन पर ये गाने गाने, उस ओकेजन पर वो। धीरे धीरे उन गानों को लोग भूल गए। वही असली हमारे लोकगीत कहलाते थे, फोक सॉन्ग जिसे कहते हैं। और अब लोग इन फिल्मी सॉन्ग से तंग आ गए हैं और उन पुराने गानों को ढूंढ रहे हैं, और उनकी बहुत इस वक्त वैल्यू हो रही है ऊपर, और उसको लोग बहुत पिछले गानों को पसंद कर रहे हैं। उनको ढूंढाया, वाकई में उसमें जान थी, उन गानों में इंटरेस्ट था, सब लोग देखते थे, सुनते, सोचते थे हमने मतलब और सीख रहे हैं हम भी। तो वो बहुत ही अच्छे गाने थे। उन दिनों लोग हंटिंग करते थे, अब जैसे हंटिंग जाते हैं जी, फिशिंग करते हैं लोग, फिशिंग उस वक्त भी करते थे, वो वैसे जाके पकड़ लेते थे, जाल डालना। जब हंटिंग उनकी ज्यादा तीर कमान से होती थी, तो तीर कमान से उन्होंने जो भी पशु मारना और खाना। तो पहले कच्चा खाते थे, धीरे धीरे उन्होंने उससे आग पर भून के खाना सीख लिया। जब इसकी फायर की इन्वेंशन हो गई तो उन्होंने उस पर बनाना सीख लिया। अब ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऐसा था, जब किसी को दूसरे को मैसेज भेजना होता था, पैदल भेजते थे। जिसने भेजना वो किसी आदमी को अरेंज करके तो कहना कि ये मैसेज वहां देना है। राजा भी ऐसे करते थे, 2-4 को भेजना। और जाते जाते अगर ज्यादा दूर जाना तो रास्ते में ही मर जाते थे, वापस आना ही नहीं। अगर पहुंच गया तो वापस महीनों सालों में आना। तो कोई अच्छा नहीं मतलब होता था। धीरे धीरे लोगों ने बैलगाड़ियों पर जाना शुरू किया, फिर घोड़ों पर जाना शुरू किया, वो तेज था। और फिर जब साइकिल आया, लोग उसको भी बड़ा कहेंगे, वो उसके घर में तो साइकिल है। फिर बाहर गाड़ियां, कारें बन गई, बसेस बन गई, ट्रेन बन गई, जिसमें हजारों लोग एक बार में सफर कर सकते थे। और आज आप देखो, हमारे एरोप्लेन एक जगह से दूसरी जगह घंटों में ले जाते हैं, जबकि पहले अगर हम शिप में जाते थे तो कई मंथ लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में। और इनकी स्पीड हमारी साउंड की स्पीड से भी ज्यादा है। और ये जेट स्केंट में कहीं का कहीं। और आप तो ये वर्ल्ड तो छोड़ो, आप तो दूसरे स्पेस पे दूसरे ऑर्बिट्स पर भी हमारे लोग जाने लगे हैं, हमारे जो ये स्पेस क्राफ्ट है जाने लगे हैं। तो अब देखिए कहाँ से कहाँ पर हम पहुंच गए। इसके बाद उन दिनों में लोग खेलते थे, क्या खेले थी उनकी, बड़े बड़े कुश्तियां करते होते थे, कबड्डी खेलनी उन्होंने, बच्चों ने गुल्ली डंडा खेलना, पिट्ठू खेलना, बॉल भी नहीं होते थे, कपड़े की बॉल बनानी, उसके साथ खेलते थे। गर्ल्स भी ये स्किपिंग हो गई, दौड़ रेसेस होती थी, स्विमिंग होती थी। पर आज तो जैसे टेनिस, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, पता ही नहीं लगता कितने गेम्स हैं। और फिर भी हमारे जो लोग हैं उतने हेल्दी नहीं जितने पहले लोग हेल्दी होते थे। आप देखो, मुझे याद है कोई पुरानी इंसिडेंट नहीं, 1997 की बात है।
मेरा एल्डर सन यहाँ आया कनाडा में, हमें उसको फोन करना होता था, क्या होता है, पहले जी कॉल बुक करवानी, फिर जाके लाइन में लग जाना, घंटों खड़े रहो, उसके बाद इतने सारे पैसे दिया उसको और बात करके आओ अपने बेटे के साथ। और आप टीवी के बाद ये आ गया मोबाइल, जिसमें आप भी बोलते हो, दिखते हो, चलते जो भी करते दिखते हो, और आपके एक कोने से दूसरे कोने में ये व्हाट्सएप के साथ ऐसा हो गया कि हम बातें करते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम आपस में बैठे एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। और यहाँ में ऐसे लगता है कि दुनिया ना स्क्वीज करके निचोड़ के छोटी सी बना दी हमने। घटना यहाँ घटती है, उसका ऑनलाइन के थ्रू एक सेकंड में दूसरे वर्ल्ड के दूसरे कोने पर पता चल जाता है कि क्या हुआ। और ये इतना ही नहीं कि क्या हुआ, हम उसको देख भी लेते हैं। अब आप कहोगे कि इतना कुछ होते हुए इतनी हमारी वो थी, मतलब इतने चेंजेस आ गए हैं, क्यों आए हैं? पर आज के लोग सुखी नहीं है, ना उतनी हेल्थ है उनकी, ना ही उनका अच्छा डाइट है, चाहे जितनी मर्जी कुछ वो अपनी ट्राई कर लें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके अगर हम आदमियों की तरफ से लें, औरतों, बहुत से इसके भी ब्रांचेस हैं कि किसको आप डिस्कस करना चाहते हो कि ये साइड क्यों हेल्दी थी। तो मैं आज सिर्फ लूंगी लेडीज की, जो क्योंकि मोस्टली आर लेडीज। तो उन जमाने की औरतें क्यों बीमार, अब इतनी हेल्दी होती थी, वो कभी बीमार भी नहीं होती थी और इतनी दौड़ी फिरती और इतना काम करती थी। आज के तो लोग बस बैठे हैं जी, मजे से सारा काम मशीनों से हो रहा है। और उस टाइम की लेडीज थी जो वो सारे आप काम करती थी। और आज ज्यादा जितनी भी लेडीज है मुझे सामने तो कोई दिख नहीं रही। मैं चाहती थी कि जो उस टाइम की लेडीज करती थी ये मैं करूंगी और आप भी मेरे साथ करोगे, तब आप देखोगे कि कैसे हेल्थ बनती है। सबसे पहले उस वक्त होता था, सारे अर्ली राइजर होते थे, सुबह उठ जाना उन्होंने। उस वक्त हर एक घरों में कहीं कोई भी टॉयलेट नहीं होते थे, सबको खेतों में जंगलों में जाना पड़ता। और सुबह सुबह उनकी मॉर्निंग वॉक इतनी तेज होती थी, ब्रिस्क। अब आपको पता है ना मॉर्निंग वॉक के कितने फायदे होते हैं। आप टाइम निकाल के जाते हो, उनके पास अपने आप टाइम आता था कि चलो। और आपको बताऊं कि जो ये नेचुरल चीज खाते हैं वो नेचुरली हेल्दी होते हैं। आपको मैं बताती हूँ कि मैं आर्मी स्कूल में जॉब करती थी, तो आर्मी की भी बहुत सारी डिविजन्स हैं, नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड। तो हमारा स्कूल था नॉर्दर्न कमांड में, और हमारा लास्ट स्कूल था कि नॉर्थ से साउथ की तरफ, और हमारा स्कूल पंजाब में पड़ जाता था। तो जो इंटर स्कूल कंपटीशन थे वो बाकी सारे स्कूल पठानकोट, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, ऊपर ऊपर को थे, हम थे लास्ट में। तो इंटर स्कूल कंपटीशन होते थे हर गेम्स में, डिबेट्स में, सॉन्ग में, डांस में, सब में। तो ऐसा होता था एक कंपटीशन एक स्कूल में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। तो ऐसे हम लोग का चांस मिल जाता था कि दूसरी जगह भी देखने जाना। तो मैं 2-3 बार श्रीनगर गई ओनली थ्रू स्कूल, और मुझे ज्यादा भेज देते थे, कहते थे कि को एजुकेशन स्कूल है, गर्ल्स में ने भी जाना है, बॉयज ने भी जाना है, यू आर रिस्पॉन्सिबल लेडी, सो यू मस्ट अकम्पनी देम। तो जब भी जाते थे हमारा स्कूल हमेशा विन करके आता था, और नाम ही रख दिया था कि UPSC चैंपियन स्कूल। तो एक बार श्रीनगर में मैच हो रहा था, हम जीत गए। एक ब्रिगेडियर की लेडी मेरे पास आई, वाइफ उसकी, एकदम आई, कहती मिसेस कलसी, व्हाट्स देयर? मैं व्हाट? Why your students are so strong? They are always winners. What do they eat? मैं क्या, मैं हम पंजाब में थे, तो पंजाब जहाँ स्कूल था आसपास गाँव थी, तो जितनी गाँव की टीम थी वो सबके बच्चे हमारे स्कूल में थे, क्योंकि उसकी फीस बहुत ही, आम जनता आ नहीं सकती थी। तो बाकी स्कूलों में ऑफिसर्स के बच्चे होते थे, नरम जो ब्रेड खाने वाले, तो हमारे बच्चे गांव के सारे स्ट्रॉन्ग। तो मैंने उसको कहा, एक तो दे बिलोंग टू विलेजेस, दूसरा मैं ये खाते हैं साग, मक्की की रोटी और लस्सी। वो इतनी जोर से हंसी ना, कहते हम तो इतना कुछ देते हैं। मैं ये
मैं नेचुरल इनकी से ये जो एक्सरसाइज होती है और ये इनका ये नेचुरल ऑर्गेनिक फूड है जो कि इनके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है। तो मतलब अभी भी ऐसा है, जो गांव में रहने वाले हैं जो नेचुरल चीजें खाते हैं, अभी भी वो हमारे से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं हमेशा, क्योंकि उनका काम चलता रहता है। आपको मैंने बता दिया, सबसे पहले तो मॉर्निंग वॉक हुई लेडीज की, करके आ गई। आते ही उसने देखा कि घर में पानी नहीं है। अब मुझे लेडीज चाहिए थी, आज है नहीं, मैं क्या करूं। ये गुलनाज तुम्हें भी सामने आना पड़ेगा, ताकि एक्सरसाइज अकेली अकेली उसमें थोड़ी करेंगी एक्सरसाइज। तो ऐसा था। उसके बाद वो लेडी आई, उसने देखा घर में पानी नहीं है। उन दिनों घर में टैप नहीं होते थे। घड़ा उठाया, कुएं की तरफ चल पड़ी। एक गांव में एक कुआं हुआ करता था जिससे सारी लेडीज पानी लाती थी। और कुआं मैंने देखा है, कुएं के पास भी गई हूँ, पर मुझे अभी भी इतना डर लगता है कि अगर मैं कुएं में वो रस्सी डालूंगी पानी के लिए, तो मुझे लगता था मैं भी साथ में चल जाऊंगी नीचे, तो मैं उसको टच नहीं कर सकती। अभी भी मुझे डर लगता है। तो लेडी ने जाना फटाफट फटाफट छोड़ के, और फिर उन्होंने क्या करना, उसके पास एक स्टेप आगे करके दूसरा पीछे, उस रस्सी को खींचो। आप भी गाजोड़ गाजोड़। कहाँ के, अब बताओ मुझे क्या कहाँ की एक्सरसाइज हो रही है। आपकी बाहों की, उंगलियों की, उंगलियां कसी हैं इन आपके, ये टिप्स की, सबकी, हैंड की, रिस्ट की, ये बाह की, आपकी हिप, ये इतनी एक्सरसाइज उसके इसी में हो गई कि पानी निकालने में ऐसे ऐसे निकालना ना, ऐसे रस्सी को एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से पकड़ के। आप घर आके देखा तो गंद बड़ा पड़ा। कुछ कहना चाहते हो? नरेंद्र आंटी, इसी वजह से तो पहले एक्सरसाइजेस और इस तरह की चीजें नहीं थी। आजकल ये काम सारे होते नहीं, इसलिए मैं एक्सरसाइजेस साथ साथ करनी में पड़ती बताऊंगी। है। अब यहाँ पानी तो मैं शुरू में कहा कि उन दिनों उनके घर टैप्स नहीं होते थे, पानी नहीं होता था, पानी लाना पड़ना जा नदी से जा कुएं से। उसके बाद आया, आप देखिए, हम उठाया जी वैक्यूम, और जी चलो जी खड़े 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 सफाई हो गई। वो आती थी, इतना गंद होता है, उनके पशु भी होते थे, उसने झाड़ू पकड़ना, फटाफट इधर उधर। देखो आप कितनी एक्सरसाइज हो रही है, हो रही कि नहीं? सारी बॉडी की हो रही है। झाड़ू लग रहा है, झाड़ू लगा लिया, उसको याद आया अब भैंसों का दूध निकालना है। हमने कहा निकालना, हमारा तो दूध आ गया जी पर पैकेट में पैक। उसने जाना जी पानी लेके, ऐसे मुट्ठी बंद करनी, ये अंगूठा बीच में, जो पशु के ये थन होते हैं टेट्स, उसको इसमें पकड़ के 1 2 3 4 ऐसे खोल के भी बंद बार बार करना उसने। देखिए कितनी आपके फिंगर्स की ये कितनी एक्सरसाइज हो रही है। उनकी एक्सरसाइज अगर हम उन्हीं को अडॉप्ट कर लेना, दिन में रोज यही करते रहे, जैसे झाड़ू की ऐसे ऐसे कर लिया, पानी निकाल लिया, और ये दूध चो लिया उसका। अब दूध लेके आ गई, अब बैठ के देखा खाना खाना, मेरे पास तो आटा भी नहीं है। उसने पहले गेहूं निकालनी, उसको ऐसे करना, साफ करने लगी। आप देखो कैसे आपके बाहों की हो रही है एक्सरसाइज। इसके बाद हो गया, अब उसने आटा पीसना शुरू किया। चक्की देखी हुई आपने? यूं वाली? हाँ, ये वाली। 2 व्हील होते हैं पत्थर के, बड़े हैवी व्हील, तो ऊपर वाला उसमें एक हैंडल लगाता है पकड़ने को, तो नीचे वाला स्टेशनरी होता है। मूवीज में देखे हैं, मूवीज में यूं घुमा। मूवीज में, और कहीं डेकोरेशन के लिए भी इतनी होती है। तो उन्होंने उसके ऊपर बैठ के एंटी क्लॉकवाइज चलाना, और पता क्या करती होती, साथ में गाने गाए जाने, ऐसे बैठ के आंखें बंद करके। अभी अंधेरा ही होता है, दिन तो चढ़ा नहीं होता, ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते। अब देखो आपकी कितनी एक्सरसाइज होती है, आप करके देखो कितनी बाहर सारी की एक्सरसाइज हो रही है, और साथ में बॉडी की भी। अब आटा भी उसका हो गया,
अब उसने देखा उसका रात का दही जमाया हुआ है, उसको भी उसने मक्खन अपना रिड़कना है उसको, उसमें क्या बोलते मधानी। जी उस्मा, आजकल उस्मा आपने कुछ पूछ। आपके घरों में इतना सा दूध हुआ, चलो जी मिक्सी में डालो, कर लो जी जो जी करना है उस्मा। अपने मक्खन। तो उसने उस बड़े सारे मटके में उसका दूध जमाया होता है, और उसने फिर लग जाना मधानी नरेंद्र बीच में आंटी, से डाल के, एक्सक्यूज मी, रस्सी नरेंद्र उसके आंटी। बीच में मधानी होती है, उसकी रस्सी उसको इधर से। नरेंद्र आंटी, हाँ जी। आप जो बात कर रही हैं वो आप किसी गांव की या पुरानी उसकी कर रही हैं। उस वक्त शहरों में क्या होता था, एक मेरा ये क्वेश्चन है। दूसरा, ये तो बेचारे लगते कि औरत इतनी मजलूम थी, उस पे इतना जुल्म होता था, सुबह से वो बेचारी लगी हुई है काम करने, ठीक है। आदमी क्या कर रहे थे? मैंने पहले आपको कहा कि मैं एक साइड ले रही हूँ, सिर्फ लेडीज, बिगिनिंग में कहा, मैं कहा आदमियों को लो। ठीक है, और ये सिर्फ आप गांव की बात, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि मेरी परनानी ने भी ये काम किए थे। एक मैं मिनट, वो भी रिलेट आती है करने की शायद। कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हेल्दी थे वो लोग भी। नहीं, सुनो, वैसे आप, मैं ये कह रही हूँ कि उनकी ये एक्सरसाइज होती है, अगर लेडीज हम भी यही करें, काम तो नहीं, एक्सरसाइज ही करें, वो ऐसे ऐसे दूध रेड करेगी, उसकी कितनी कितनी सारी बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है, देखो। तो, नरेंद्र आंटी, अभी अभी सोफिया ने वो बताया ना, ये और ये सारी एक्सरसाइज बताई। ये सारी एक्सरसाइजेज उन्हीं से डेवलप हुई हुई है, कोई बात नहीं। तो मेरे उसके जी बाद वो, आप जैसे हमारी अकेले यूनि फैमिलीज है, अकेले एक यूनिट है फैमिली, पहले उस वक्त क्या था, कंबाइंड फैमिलीज होती थी बहुत बड़ी। जी, बरिंदर आंटी भी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ जी, बोलो। हाँ जी नरेंद्र जी, ये हमने सब काम किए हैं ईरान में, करते चूल्हे हैं कि जलाने। होते हैं, मैंने तो, मैं आपको बाद में सारा बताऊंगी मैंने कौन सा किया, मैंने मैं गांव में कभी रही नहीं, क्योंकि 70s में आया था ओवर इन ईरान। हाँ हाँ तो हाँ। तब तो हम लोग हाथ से ही करते थे, कपड़े भी धो ले हैं हाथ से, मशीन अभी अभी आ रहे वहां भी। अब उन्होंने आटा गूंदना, तब भी कितनी एक्सरसाइज होती है, ये सब काम रोटियां हमने पकानी, ये किए हैं। कितने, ये हमारे हाथ के, ये जितने माउंट्स है, ये हर एक ऑर्गन के साथ हमारे जुड़े हुए हैं। आपको मतलब पेन हो रही है कि आप ऐसे करो, आप ये हाथ है, इसको ऐसे सारी जगह दबाओ, जिस जगह आपके दर्द हो रही है, इट मीन्स उस ऑर्गन में आपके पेन है, कोई ट्रबल है। और ऑर्गन बताते हैं, देखो इधर ये हमारे, इधर ये स्टोमक है, इधर हार्ट है, इधर कोई किडनीज है। आवाज नहीं आ रही? आपका हाथ नहीं नजर आ रहा, अब बताइए। मतलब ये जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ये माउंट माउंट कहते हैं, जो उभरी हुई जगह है। पॉइंट। तो ऐसे अब कहीं अपने, मतलब इसमें हर एक ऑर्गन हमारा ना, ये देखिए, आपको किसने हमारे इसी प्रोग्राम में भी बताया था, इसको उल्टा कर लो तो दो टच पॉइंट, टांगे दो, टच पॉइंट क्या कहते हैं उसको? किसने बताया था ना, कि एक्यूप्रेशर इसको पॉइंट ऐसे कर से लो, ये दो चंडीगढ़ से प्रेशर टांगे बढ़ थे ना। पॉइंट्स, जाएंगी, ये दो टांगे बढ़ जाएंगी, प्रेशर फिर पॉइंट्स। अंगूठा काट के लगा लो, ये सिर बन जाएगा, किसी ने ऐसे बताया। तो मतलब इधर हेड है, इधर आर्म्स हैं, इधर हमारे लेग्स हैं, हार्ट है, ये लंग्स हैं, किडनी, सब उसकी स्पेस बनी हुई है हमारे पास है। तो आप थायराइड के, आप देखो ये आपका वीनस है, इसके ऊपर आपको कहीं ना कहीं पेन होती होगी, ये चीज जो अंगूठे के पास है, ये थायराइड, मतलब हर एक हेड में हो रही है, यहाँ देखोगे। और बिल्कुल वो, आप उसको कहीं भी, अगर आप नहीं भी कुछ पता आपको, दबाइए, जहां दबाएंगे उसके नीचे जो ऑर्गन है, उससे कंसर्न आपके ऑर्गन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अगर आप ऐसे दबाते रहो तो बहुत फर्क पड़ता है उससे, एक्यूप्रेशर इसको बोलते हैं। अब वो लेडीज ऐसे अंगूठे को करती हैं, इसके साथ हमारे माउंट सारे दबते हैं, ये देखो। आज पहले क्या जगह कीर्तन होने था, यहाँ बजनी खूब ताड़े लोगों ने गाना, तो वो इससे बहुत फैलाता है, प्रेशर पड़ता है इसके ऊपर। उसके बाद वो लेडीज क्या करती थी, उनको थोड़ा टाइम मिलना तो कपड़े धोने, ये थोड़ी कि मशीन में कपड़े डाले, डिटर्जेंट डाला, कपड़े धो गया, उसको ड्रायर में डालो,
हो गए नहीं, पहले बीबी तो लॉन के बेचारियों ने कपड़े पानी ढोना। नहीं तो नरिंदर आंटी, हाँ जी, अभी भी मैं लॉन के कपड़े हाथ से धोती हूँ, वेरी गुड। खराब ना हो जाए। तो उसके बाद उन्होंने पहले साबुन लगाना, देखो कितना जोर लगता है साबुन लगाने में, तो कितना झटका लगता है हाथ को। फिर उन्होंने पकड़ा, धोबी पटरा लगाओ या थापी लगाओ, कितनी पूरी पूरी बॉडी हिलती है, और हमारे सारे जो भी मसल्स है उनमें एक्सरसाइज होती है। और नेचुरली मतलब अगर नहीं करते तो सिर्फ स्टिप हो जाते हैं बिल्कुल। तो उन्होंने फिर उसके बाद जब उनको टाइम मिलता है चरखा कतना, उनके पास कौन से कपड़े रहते थे, अपने आप काट काट के उसको वो कपड़े टाइम बनाती कहाँ से थी। निकल आया फिर चरखे का भी, इतना कुछ करने के बाद? है अब सुनो, अब इतना कुछ हो गया, फिर भी वो हमारे से हेल्दी होती थी। क्यों होती थी? एक तो उनकी एक्सरसाइज सारा दिन होनी, सारा दिन एक्सरसाइज आप करो, आप दिन में घूमते घूमते ऐसे ऐसे करते जाओ, झाड़े लग गए सबके। उस दिन मतलब अब धीरे धीरे उन्हीं चीजों को रिफाइन करके साइंटिस्ट आ गए, साइंटिस्ट ने इन्वेंशन करने शुरू कर दिए, डिस्कवरीज हुई, चेंज स्लोली एंड स्लोली चेंज आता गया, और अब हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। तो अब हम मोस्टली हम लोग जो पहली चीजें उनको प्रेफर कर रहे हैं, और आ रहे हैं लोग उधर, ये योगा वगैरह, ये पहले जो संत महात्मा होते थे, साधु संत, वो ज्यादा करते होते थे तपस्या और ये योगा, और अब घर घर में ये चल रहा है। पहले इसका पता ही नहीं था, जब हम छोटे थे हमें तो बिल्कुल नहीं पता था योगा क्या था। तो अब जो भी हम पिछली चीजें अपना रहे हैं, चाहे कुछ भी है, चाहे कितने भी सुखी हैं हम इस तरह, पर हम यही कहेंगे कि पुराने जमाने के लोग, और किसी ने तरह नहीं तो किसी अपने कम से कम हेल्दी होते थे, स्ट्रांग होते थे, और उनकी एज भी ज्यादा होती थी। तो अगर वैसा पुराना कोई चेंज आ जाए, जैसे ये अडल्ट्रेशन खत्म हो, कुछ एक्सरसाइज करते रहे, कुछ काम जो हम फुली डिपेंडेंट हो गए मशीनरीज पर, इसको छोड़ के खुद करें, तो नेचुरली है कि बीमारियां भी कम होंगी और हम भी हेल्दी होंगे। अब हम बार बार देखो, ये वर्चुअल प्रोग्राम पर हमने कितना कुछ सीखा है, ये भी चेंज ही है। हमें कुछ भी नहीं, मेरे को तो बिल्कुल कंप्यूटर नहीं आता था कि क्या कैसे इसको चलाना है, काफी कुछ आ गया, सीखा तो आ गया, तो मतलब गुजारे लायक है, अभी तो कह नहीं सकती मैं बहुत आ गया, तो भी पूछ पूछ सीख सीख के। तो इसलिए ये जो चेंजेस हैं, अगर इनको हम डिस्कस करें तो बहुत बहुत टाइम नहीं हम कर सकते, बहुत टाइम लगेगा। सो आई टुक ओनली लेडीज साइड एंड टोल्ड। और आप बताइए आपको क्या कैसा लगा, गेट जाए और नहीं? अगर लेडीज होती तो मैंने आपको 10-10 बार सबको सारियों को करानी थी एक्सरसाइज। बच गए हम। सारी छुपी है कहाँ, मैं छुपी हो कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। नरेंद्र आंटी, अब ना अंकल शौरी बताएंगे हमें क्या आदमियों के बारे में, कि उनकी लाइफ और आज के आदमियों की लाइफ में क्या फर्क ब्रीफ है। में बहुत ब्रीफ बताऊंगी। क्यों अंकल शौरी? मैं बहुत हो जाएगा। देखिए आदमी भी उस टाइम बहुत ज्यादा काम करते थे, बहुत ज्यादा, बेचारे भूखे उठ के सुबह चल जाते थे खेतों में, और इतनी देर आंटी क्यों औरतें वहां, तब औरतें जो होती थी वो खाने को नहीं देती थी? नहीं देती थी। उन्होंने पता क्या करना, पहले उठ के सारे काम करके, दूध रिड़क के, रोटी बना के, सब्जियों फ्रेश सब्जियां पूरे आसपास से तोड़ के बना के, फिर खूब सारी लस्सी लेके, मक्खन लेके, फिर वो सिर पर रख के खेतों में जाके देती होती थी। फिर गाना भी होती है, सारी गाने भी होते काट के इकट्ठे खाना। इन्होंने बता दिया कि जेंट्स खेती कर रहे होते थे। अच्छा, एक बात इन्होंने टच नहीं की, पहले लोग बोर नहीं होते थे, बोर नहीं होते थे, सारा दिन बिजी रहते थे वो। अब 2.5 साल की मेरी वो है बेटी की बेटी, वो सुबह उठते देखते मैं बोर हो रही हूँ। 2.5 साल का बच्चा कह रहा है मैं बोर हो रहा हूँ। वो उनका दिन इतना बिजी होता था, सुबह से रात तक बिजी रहते थे वो। और दूसरा
कि रात बच्चे को जब इकट्ठे होकर स्टोरी सुनानी उन्होंने। बच्चे जब पुराना गाना सुनते हैं तो पूछते हैं कि हीरो और हीरोइन बीमार हैं, ये एक ही जगह बैठे बैठे पूरा गाना गा दिए ने। अच्छा, तीसरा हमारे देखते देखते डबल बेड आए, पहले बेड सिंगल होते थे। बिल्कुल। और हमारे से पहले और झगड़े बढ़ गए। इतने बड़े बड़े बेड होते थे, 2-2 जितने बड़े। अंकल शौरी, यहाँ पे मैं ये वो जो गाना आप कह रहे हैं बीमार है, तो वो एक्चुअली काम कर करके इतना थक चुके होते थे ना, तो उस वक्त वो अच्छा, इसलिए बैठ के गाते थे। एक ब्यूटी पार्लर नहीं था उस समय, पर वो करती थी उसके टाइम में, उनके अच्छा पास बहुत कुछ था। और एक बात मैं बताता हूँ आपको कि उस समय पुराने जमाने में जो बच्चे थे ना, वो पेरेंट्स की मार खा के पेरेंट्स को बहुत प्यार करते थे। आजकल हम बच्चों को इतना प्यार करते हैं और इन रिटर्न हमें इतना प्यार नहीं मिलता उनसे, बच्चों से हमें मार मिलती है। मेरे याद है पहले मेडिसिन के जो प्रोफेसर होते थे ना, उनके पास रश रहता था, लोग दिखाने जाते थे कि मेरी मदर को ये प्रॉब्लम है, मेरे फादर को ये ब्लड प्रेशर है, हार्ट है की प्रॉब्लम है। अब मेडिसिन वाले खाली बैठे हैं, जो पीडियाट्रिक्स है, बच्चों के डॉक्टर है ना, उनकी दुकानदारी चल रही है। ये खाता नहीं जी, 4 केले खाए हैं, इसने रोटी नहीं खा रहा। तो 4 केले खा लिए तो रोटी कहां से खाएगा? तो बड़ा अच्छा नरेंद्र जी ने हमें बताया, बड़ी चेंजेस आई हैं, ये मानना पड़ेगा। बहुत चेंज आ रही है और अच्छी आनी चाहिए जी। और जो चेंजेस आई हैं अगर आप देखें तो अभी फिर वो बैक टू बेटर फ्यूचर पे जा रहे हैं वो लोग। उन्हें लगा कि ये माइक्रोवेव जो बनाया था आसानी के लिए था, लेकिन इससे तो बहुत सारी बीमारियां निकल आई हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिक बैन हो रहा है। हाँ, वो ना एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है ना हम लोगों के लिए अच्छा है। वो बच्चों के फीडर्स जो थे, जो एक प्लास्टिक के थे, अब कहते हैं सब कुछ शीशे में ले आओ। पुराने वक्तों में जो चीजें थी, कपड़े के थैले थे, अब वो कहते हैं दोबारा से आप कपड़े के थैले ले आओ, अपने घर से ले आओ तो ज्यादा अच्छा है, हमसे लोगे तो खरीदना पड़ेगा। आपको पता है आजकल बर्तन भी मिलने लगे मिट्टी के, सब्जियां भी, कढ़ाइयां भी मिलने लगी, पतीले। बिल्कुल, स्टील के भी चलना शुरू हो गए, स्टील के ग्लास और वो। बिल्कुल बिल्कुल। अब उन्होंने स्टील एक पूरी जनरेशन। जी, और हमारा टाइम था बैम्बू के। नहीं, देखो हम थे, हमारे टाइम में कॉलेज जाना, कहते कॉलेज क्या बनना है, इंजीनियर, डॉक्टर या टीचर। अब इतनी ब्रांचेस हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि क्या करना है, बेहद ब्रांचेस हैं। तो नरेंद्र आंटी, अब जैसे इतना सारा पैसा लगा के रिसर्च करके बहुत सी चीजें उन्होंने कहा कि नहीं वो पहले वाली ही बेहतर थी। तो कुछ चीजें जो हैं बदलती गई, कुछ अच्छी कुछ बुरी। जैसे टेक्नोलॉजी ने बहुत हमारा साथ दिया है। अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो कोविड में बहुत से लोग आइसोलेशन में ही रह जाते। हैट्स ऑफ टू टेक्नोलॉजी जिन्होंने इकट्ठा किया। अब ये डिपेंड करता है कि हम उस चीज को कैसे यूज करते हैं। हर एक का अच्छा यूज है, बुरा यूज है। जहां टेक्नोलॉजी ने स्पेशली सीनियर्स को पूरी दुनिया से मिलाया है, वहां हमारे बच्चों को हमसे दूर कर दिया। वो सब आपस में ही लगे रहते हैं। तो हर चीज का प्लस माइनस, हर दौर की अपनी ब्यूटी होती है। उस वक्त के दौर की अपनी ब्यूटी थी, फिर वो एक हिप्पी दौर आया था, फिर और दौर आए थे जो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होते जा रहे हैं। और कितने सदियों से जो इंसानी हिस्ट्री अगर आप उसे देखें, कैसे वो चेंज होती गई ग्रेजुअली। और बहुत अच्छी बात है आज आप ये टॉपिक लेके आई। मैं एनकरेज करूंगी सबको। प्राणा जी, आप भी अनम्यूट कीजिए। आप लोग बताइए एक मेजर चेंज जो आपको लगा कि आपने जिंदगी में एक्सेप्ट किया, या आपकी जिंदगी में आया, या आपको चैलेंज लगा उसे एक्सेप्ट करने। कोई एक चेंज आप में से। प्राणा जी, आप बड़ी देर से खामोश थे, आपसे स्टार्ट कहता है जी मुझे आपकी मेल मिली नहीं। अब मेल को भी स्त्रीलिंग बना दिए। That's a nice one. पहले लेटर लिखते थे, लेटर आना, वेट करनी उसकी, फिर उसको बार बार पढ़ना। पहले होता था चिट्ठी मेरे माही नू पहुंचाई वे कबूतरा,
वो कबूतर का काम होता था, अब कनाडा पोस्ट कबूतर हो गया है। ठीक है, अब चिट्ठी जी। जाती नहीं है। जी जी प्राणनाथ जी। हाँ जी, पहले ज़माने में और अब के ज़माने में बहुत अब्रप्ट चेंज आ गई है। पहले ज़माने में जो था, आपस में बड़ा भाईचारा, बड़ी मोहब्बत और अपना मेल जोल बहुत होता था। परंतु जो नया ज़माना ना, इसमें कोई मेल जोल नहीं है और लोग सेल्फ कन्फाइंड से हो गए हैं और किसी के और इतने बिजी हो गए हैं, जबकि इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। आपने देखा है कि हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, कोई कनाडा बैठा है, कोई इंडिया बैठा है, कोई कहीं बैठा है, तो ऐसे लगता है जैसे हम बिल्कुल नज़दीक हो गए हैं। परंतु ये है कि अगर इतने नज़दीक होने के बाद भी हमारे अंदर वो की भावना, मोहब्बत की भावना वो कम हो गई है, मिलना जुलना कम हो गया है और मतलब फेलो फीलिंग भी कम हो गई है, क्योंकि हम सेल्फ कन्फाइंड से बन गए हैं। ठीक है कि पहले ज़माने में जैसे मैडम ने बताया, मैडम निंदा जी ने बताया कि पहले ज़माने में ये होता था, वो होता था, वो ज़माना हमने भी देखा है। और वो ज़माना और नया ज़माना जो आपका ज़माना है, आपका ज़माने में जो है ये कंप्यूटर, लैपटॉप, ये अपने मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, इन्होंने हमें बिल्कुल नज़दीक बना तो दिया है, परंतु वो बात जो हम एक दूसरे से मिल करके कर सकते हैं, वो बात कम हो गई है। क्योंकि जो मिल करके हम अपना विचारों का शेयर करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उससे हमारे अंदर प्रेम की भावना, मोहब्बत की भावना पैदा होती है। ये थोड़ा सा हो गया है। अब पहले चिट्ठियाँ आती थी, चिट्ठी की डाकिया आता था, डाकिए की इंतजार होती थी। अब कोई डाकिए की कोई चिट्ठियों की वैल्यू खत्म हो गई है। चिट्ठी तो आती नहीं, वही है जो कोई जरूरी लेटर कोई आने हैं वो आ जाएंगे। वो जो हमारा आपस में भाईचारा था, मोहब्बत थी, मतलब एक लड़की की शादी होनी, आपको बताता हूँ, जैसे मैडम बता रही हैं कि सारा गांव जो था वो इकट्ठा हो जाता था और सारे गांव ने अपना अपना शेयर डाल देना बीच में और सारे सेवा करने के लिए वो तैयार हो जाना, वो मतलब इसको शुभ माना जाता था। गांव में हमारे गांव की बेटी, हमारे गांव की बच्ची की शादी होनी, किसी का दुख सुख होना, तो सारों ने इकट्ठे हो जाना और एक गांव का या एक दुकानदार, मोहल्ले का एक दुकानदार ये बता देता था कि वो फलाना आदमी ये है वो है, उसको सारी खबर होती थी। और अब तो पहले उसका नंबर पूछो, फिर वो GPS लगाओ, फिर उस जगह जाओ। वैसे तो बहुत बढ़िया हो गया है सारा सिस्टम, क्योंकि साइंस ने पड़ोसी का भी नहीं पता कि कौन रहता है हमारे पड़ोस में, है जी, बिल्कुल पता नहीं होता भी पड़ोस में रह कौन रहा है, ये भी नहीं पता। अब तो ऐसा हो गया है कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है ये भी नहीं पता चलता। ऐसी बातें हो गई हैं और सब लोग मिलजुल कर रहते थे, बड़ा मोहब्बत था, कोई ऐसी बात नहीं थी। पर वो जो नया और पुराने जमाने में ये अंतर आ गया है। और अब वो अभी कोई पास भी रहता है तो वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, ये भी हो गया है। क्योंकि मतलब कि एक दूसरे को देखने वो बेचारा मुझे आज एक सरदार जी बता रहे थे, यार हमारे कोई लोग हैं वो हमें ऐसा स्वीकार नमस्ते करने को तैयार नहीं है, तो एक जान बचा करके छिप करके उधर चले जाती हैं। मतलब ये वक्त आ गया है। और ठीक है, ये भी नया जमाना है अपने अपने हिसाब का। जैसे भी ये भी कुदरत का ही असूल है कि जब चेंज आती है तो फिर हर तरफ से चेंज आ जाती है। मतलब कि जब हमारी हर तरफ से ऐसी भावना पैदा हो जाती है जो एक्सपोजिंग एक के मन में आ गया तो दूसरे में भी आ जाएगा। ये हो गया है, ये पुराने और नए जमाने में। और ठीक है, वो कहते हैं कि चावल जैसे अब प्लास्टिक के चावल हो गए हैं, तेल भी ऐसा हो गया है, घी भी ऐसी हो गया है। और आगे लोग खुद मेहनत करते थे और खुद मेहनत करके वो अपनी चीज़ बनाते थे। और जो अपनी चीज़ अब लोग कहते हैं यार क्या बनाना है, होटल में चलते हैं। वो बात होटलों में जाके, होटल में चाहे वो जैसा पुराना आपको सजा सजू करके पकड़ा देगा, आपको क्या पता है कि उसमें क्या मिलाया है। तो ऐसे सिस्टम में थोड़ा सा मतलब कि वो भावना पैदा हो गई है। ये मेरे एक्सपीरियंस ये है। आप सब जानते हैं, इसमें क्या बताना है। तो प्राणनाथ जी आप बताइए कोई एक चेंज जो आपके लिए मुश्किल लगा जिंदगी में,
ठीक है। ये कि अगर जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है जिंदगी में, तो फिर स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। और मतलब कि यदि ये सोचो कि भाई बैठे बैठाए चीज मिल जाएगी, ये नहीं मिलेगी, क्योंकि जिंदगी को हरकत में रखना पड़ेगा, जिंदगी को मतलब कि मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर तुम जो चाहोगे वो मिल जाएगा। ये भी है। अगर सपोज हम वो कहते हैं ना, एक मैं शेर सुनाता हूँ इस बार, कहते हैं जिंदगी हरकत में ला और फिर तमाशा देख ली, जिंदगी हरकत में ला और फिर चंबा देख ली, दिखता है जो जहां में जिंदगी का है जरूर, राही को पर्वत जहां में वीर होता देख ली। अगर मतलब जिंदगी में हम मेहनत करेंगे, हरकत में रखेंगे, जिंदगी हमारी आगे बढ़ेगी। और जो भी आदमी है, ये अब देखो यहाँ लोग आए हैं, कनाडा में आए हैं, कोई डिफरेंट कंट्री से आए हैं, या 75 कंट्रियों के लोग यहाँ रहते हैं इस कनाडा में, और इन्होंने कितनी डेवलपमेंट कर दी है। मतलब कनाडा में देखो आप, कनाडा में इतनी डेवलपमेंट हो गई है। हमारे भी इंडिया में काफी लोग मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये एक भावना होनी चाहिए कि जिंदगी जो हमें मिली है, ये कहते हैं ना, बीरा तेरी जिंदगी बड़ी अमूल्य चीज, ऐवे ना तू ग्वाली है मेरे अजीज। ये जो जिंदगी मिली है, किसी को 70 की मिली है, किसी को 80 की मिली है, किसी को 90 की मिली है, ये तो उसके हाथ में है। परमात्मा के सांसों का दौर है, कितने सांस लेता है ये उसके हाथ में है। पर जो हमें जिंदगी मिली है, इसको जिंदगी को मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर इसका सदुपयोग, टाइम का दुरुपयोग ना किया जाए तो जिंदगी आगे बढ़ती चली जाती है। और जो जहाँ पर हम हैं उससे आगे बढ़ जाएंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आई वॉज ओनली मैट्रिकुलेट व्हेन आई जॉइंड द सर्विस, और मैं एक स्टोर अटेंडेंट था बिजली बोर्ड में। तो धीरे धीरे अब आगे बढ़ने की भावना, कहते हैं ना, जिंदा दिली तुम्हारी आगे को ले चलेगी, हिम्मत मर्दा बनकर मंजिल तुम्हें मिलेगी, मुर्दा दिली में प्यारे क्या जीवन गुजार दोगे, हाथों पे हाथ रखकर क्या दिल की कली खिलेगी। तो ये भावना थी। और जब मुझे पता भाई मुझे जिंदगी मिली है, मैं आगे बढ़ना है, तो फ्रॉम स्टोर अटेंडेंट आई रिटायर्ड एज डिप्टी डायरेक्टर। ये मतलब मेहनत करके और डिफरेंट स्टेशनों पर जा करके देखा है, और हर एक आदमी के साथ मिलजुल के सीखा है, सीखने को मिला है, जिससे और अभी यही है, चाहे मतलब जितनी भी उम्र का कोई होता नहीं, ये सांसों का खेल है भाई। हमारी जितनी जिंदगी मिली है, इसको हमने we should try to learn more and more, we should try to do more and more, we should मतलब motivate ourselves at every time। और जिंदगी में रुकावटें भी आती हैं। कहते हैं जिंदगी की राह में आएंगे कई तूफान भी, जिंदगी की राह में आएंगे कई तूफान भी, इंसान कहते हैं उसे जो दौड़कर संभले उन्हें, कि अगर हम दौड़कर पकड़ लें, वक़्त को पकड़ लें, और वक़्त फिर हमारी जय जयकार है। और वो बोलने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है, देखने वाला भी वही है, हर इंसान में वही है। और जो उसको चाहे अल्लाह कह दो, राम कह दो, खुदा कह दो, वाहिगुरु कह दो, जो मर्जी कह दो, ये जो हमने नाम रखे हैं, और वो हमें प्रेरित करता रहता है। वही अंदर से फुरना फोड़ता है, वही एक भावना अंदर पैदा करता है कि यू आर टू गो हेड। फिर देखो तुम्हारे आगे एक जिंदगी आसान लगेगी, जहाँ कोई भी है वो एक आसान जिंदगी बन जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी इंसाइट दी जी। गुलनाज भी कुछ कहना चाह रही हैं जी। शौर्यंका, बड़ी चेंज ये आई है। आवाज मेरी आ रही है? मेरे इसमें कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है जी जी। कि पहले आदमी कहता था कि मेरे बाल बच्चे हैं मेरे, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब व्यक्ति वही है, वो कहता है मेरे बाल बच्चे हैं, मुझे सच मत कहलवाओ। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। पहले लोग कहते थे ये जो हमारा सीनियर है ये बड़ा अच्छा है, ये कुछ किसी से रिश्वत नहीं लेता और ना किसी का गलत काम करता है। अब कहते हैं ये अफसर बड़ा अच्छा है, ये ले देकर फटाफट काम कर देता है। पहले होता था रियलिटी, लोग चींटियों को दाने डालते थे। मैं डेफिनेशन बदल गई, अच्छे को बुरा बना दिया, बुरे को अच्छा बना दिया। नहीं, जैसे बता रहे थे ना मिसेज कलसी, जो कणक पीसते थे ना, उसको पहले धोना पड़ता था, फिर सुखाना पड़ता था, और जो लकड़ी चूल्हे में लाई जाती थी उसको पहले तोड़ना पड़ता था, काटना पड़ता था,
और ये लगभग हर जगह पे, मतलब विलेजेस में नहीं, टाउन्स में भी ऐसा था। बहुत जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उनका मुझे नहीं पता, लेकिन सभी टाउन्स में ऐसे ही था जैसे इन्होंने। मैंने गांव में देखा कभी। और जो घर की छतें होती थी ना, उन पे भी खुद वो करना पड़ता था, खपरेल कुछ गोबर से में वो कने का भूसा मिलाकर उसे वो लीपते थे, मिट्टी। और चूल्हा हर दिन उससे गाचनी से, जैसे हमारी वो फट्टी होती थी लिखने वाली, उस फट्टी को हम साफ करके लेके जाते और उसी फट्टी से हमारी पिटाई होती थी। जो आप कह रहे हैं कि आज आपको क्या मुश्किल लग रहा है, आज बड़ा मुश्किल ये लग रहा है कि पहले बच्चे जो थे वो पेरेंट्स की सुनते थे, वो कुछ भी कहते सुनते भी थे बच्चे और मानते भी थे। अगर आज मानना तो बहुत दूर की बात होगी, सुनते ही नहीं। फैमिली सिस्टम होता था सर। आई एम बिजी, यही होता है। आई नो। पेरेंट्स मानते हैं, पेरेंट्स सुनते हैं, पेरेंट्स सुनते हैं। जो रिमोट है ना घर का, वो बच्चों के हाथ में है। पहले एक बुजुर्ग होता था घर में बड़ा, उसकी बात मानी जाती थी, किसने कहा है, बड़े ने कहा है, बस। उसके बाद कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। अब कहते हैं बच्चों से पूछ लो, क्या बनाना है बच्चों से पूछ लो, कहाँ घूमने जाना है बच्चों से पूछ लो। ये एक बड़ी चेंज है। नहीं, आपको मैं बताऊं, जहाँ ये चींटियां होती हैं, कीड़ियां, ये बाहर होते हैं, लोग उनको दाना डालते हैं, उनके जा जाके ढूंढते हैं अपनी तरफ से, वो पता नहीं कुछ करते हैं, भला वो हमारा उनको। अरे 2 चींटियां घर में आ गई ना, ओए लाओ पेस्टिसाइड लाओ, इनको मारो मारो मारो, अरे घर में आ गई। बाहर उनकी पूजा होती है, घर में उनको मारो। जी गुलनाज, आप कब से कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सबसे बड़ा चेंज जो है ना वो फोन का आया है। पहले होता था तकरीबन मेरे ख्याल में 80s में, लेट 80s तक ये होता था कि किसी एक घर में फोन लगता था और मोहल्ले के सारे वहां आके सुना करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हर घर में फोन आ गया, और 90s के बाद जो है वो, बल्कि 2000 के बाद अब हर घर के अंदर हर बंदे के पास फोन है। नहीं, मैंने नहीं बताया कि हम यहाँ फोन करते थे, पहले कॉल बुक कराओ, फिर लाइन में लोगों, फिर पैसे भी खूब लेते थे वो। पैसे भी खूब सारे दो, थोड़ी सी 300 रुपया लगते थे भाई को फोन करते थे हम कनाडा 3 मिनट के लिए, और वो भी आधा वक्त होता था, आवाज आ रही है नहीं आ रही, अच्छा आ रही है नहीं आ रही, उसी में टाइम निकल जाता था। और यहाँ पे $13 की कॉल थी, 3 मिनट कार्ड मिलता था, और जो रोजर्स वाले थे वो पर मिनट जो था वो $13 का देते थे। मैं तो जब करती थी ना वहाँ इंडिया में से, तो कभी 150 लग जाना, कभी 200 लग जाना, ऐसे पैसे जाते। लोग सोच कर रखते थे कि क्या बात कहनी है, बस बेबे चाड़ती बिजहाज चाड़ती, बेबे चाड़ती। 3 मिनट में भी बहुत कुछ बात हो जाती थी। अब सारा आधा घंटा भी बात कर लो ना तो समझ नहीं आती क्या बात की थी। पहले लोग मिलते मैसेज देते थे कि हमारे घर वालों को ये मैसेज दे देना मेरा। अब तो लड़की को उसकी मदर उठाती है सुबह टेलीफोन करके, जिसकी शादी हो चुकी है, बेटा उठ गया तू, बच्चों ने स्कूल जाना होगा तो उठ जा। जैसा आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ रहा है। जो आंटी आप वो बात बता रही थी होटल की जहां आप गए थे, उसका नाम उन्होंने रखा था, वो वाला क्या नाम रखा था? कौन सा वाला? वो बैंकेट हॉल था शायद, मैं टिंडा वाला खूब टिंड बोलते थे उसको। वैसे मैं कभी नहीं पढ़ी, गांव में नहीं पढ़ी मैं बिल्कुल, बड़े बड़े शहरों में जाएंगे। पहला मैं कराची में हुई, इतना बड़ा शहर है। पहले एक और बात है उज्मा जी, स्ट्रेस इसलिए नहीं था कि पेपर में चॉइस बहुत थी। 10-12 बच्चे होते, 2-4 बीमार हो गए चले जाते, 8 बच जाते, 3 पढ़ जाते, 2 की शादी, चॉइस थी। और 2-3 ही बच्चे हैं,
वो ठीक रहे, वो पढ़ भी जाए, उनकी शादी भी हो जाए, तो चॉइस नहीं आपके पास पेपर में। मेरी नानी अम्मा के 10 बच्चे थे, उनमें से 2 पहले फौत हो गए, छोटे छोटे फौत हो गए, तो बाकी 8 से काम चल गया। हम 8 बहन भाई थे जी। हम 10 मेंबर थे घर के, हम 5 सिस्टर्स 2 ब्रदर, एक कुत्ता हमारा हमेशा होता तो पूरे 10 का था। तो मोहिनी आंटी, जैसे अभी आपने ये सारी बातें की, अपने एंसेस्टर्स की बातें की, उस जमाने की बातें की, हम एक तरह से उन्हें ट्रिब्यूट दे रहे हैं कि हाँ, उन लोगों ने जो कुछ किया, हमें वो चीजें उनकी पसंद आई। इसी तरह अगर आप देखें, मैं एक सीरियस नोट पे बात करने लगी हूँ, जो यहाँ कनाडा में जो नेटिव हैं, उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनके साथ क्या किया गया, ठीक है, हम लोगों को वो भी एक्नॉलेज करना चाहिए। उन लोगों की जो जर्नी है, सब कुछ है। तो जैसे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम वो टाइम डिस्कस कर रहे हैं, हम वो नाम कि ये इस जगह का नाम क्यों रखा गया, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे कल हम सितंबर 30 को पहली दफा हम एक दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं जो आज से पहले हमने नहीं किया था नेशनल लेवल पे, तो उसका थोड़ा सा हम रिस्पेक्ट किस तरह कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप लोग ढूंढें कि आपके आसपास कौन सा रिजर्व है, कौन सी ऐसी जगह है जहां ये नेटिव लोग, इंडिजिनस लोग रहते हैं, उस जगह को थोड़ी सर्च करते हैं। उसके नाम पे, जैसे नाम का बहुत बहुत बड़ा हाथ होता है हर चीज में, ये नाम क्यों रखा गया, आपको सारी हिस्ट्री मिलेगी। आज हम यहाँ अपनी हिस्ट्री जैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि आप लोग टाइम निकालें और देखें हमारे करीब में जहाँ हम लोग रहते हैं, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, जहाँ भी रहते हैं, कौन सा ऐसा रिजर्व है, वहाँ जो इंडिजिनस लोग रह रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, क्या हुआ था। जो आप बात कर रही हैं कि कितनी मेहनत से वो पानी निकालते थे, आज भी उनको पानी लेना बहुत ही मुश्किल है, उनके पास पानी नहीं है। उन लोगों को टिम हॉर्टन्स के वॉशरूम से जाके पानी भरना पड़ता है, क्योंकि जहां उनके पास पानी है वो साफ पानी नहीं है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में हम अपना काम करते हैं, यहाँ रहते हैं, हम इंडिया पाकिस्तान को याद करें, तो जो लोग यहाँ हैं हम थोड़ा सा उनको भी याद करते हैं, उनकी भी स्ट्रगल्स को एक्नॉलेज करते हैं। तो ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने तौर पे आप लोग किसी एक रिजर्व का जो आपके पास है उसको स्टडी करें, उसको जानने की कोशिश करें। और हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह हमारी नई जनरेशन जो है उन्होंने उन्हीं के साथ उठना बैठना है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं अपने तौर पे कि आसानियां पैदा हों सबके लिए, उन लोगों के लिए जिनका ये मुल्क है, जिसपे हम सब लोग आए, पहले किसी ने कब्जा किया, अब हम लोग हैं। ऐसे ही है जैसे हमारे घर पे सब कोई और आके रहना शुरू कर दे। तो बस ये मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कल के दिन का एहतराम करते हुए, सिर्फ हम ऑरेंज शर्ट ना पहने, हम ये ना कहें कि हाँ जी हम उनके साथ हैं, प्रैक्टिकली सोचें हम क्या कर सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू। तो इस पे मेरे ख्याल में आज का सेशन खत्म करते हैं। नरेंद्र आंटी, थैंक यू सो मच। आपने बड़े अरसे से आप हमारे साथ शेयर करना चाह रही थी, दोनों पुराना दौर और आज के दौर को बताना चाह रही थी, कंपेयर करना चाह रही थी। सो नाइस ऑफ यू, बड़े अच्छे तरीके से आपने बहुत अच्छे मैसेजेस दिए।